ब्रह्मपुत्र दे बेसी अर्जेंट পৰা বচাবলৈ লাগিয়া দেখি আছে এটো এতিয়া যাই থাকে এক্সপেডিশন পৰা পাইছে 20 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা শুরু কৰা এক্সপেডিশন পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দে ইকোলজিক্যাল কমজোৰ থাকে দেখাই আছে এক্সপেডিশন কিন্তু পানপা ৰিজাৰ্ভ পৰা শুরু কৰিছে তাই কান 5 দিন পৰা 100 কিলোমিটাৰ নিচিনা কভাৰ কৰি লৈছে এটো এক্সপেডিশন দ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওচৰখান দে ইকোসিস্টেম দেখাই গিনা মানুহখানগে আৰু বি ৰেসপন্সিবল হবলে নিবিদি আছে মেম্বাৰ্স কান কৈছে কি লোকাল মানুহখান নিজৰ সেলফ সাফিসিয়েন্ট হৈ গিনা ইকোসিস্টেম গে বা প্ৰাচাই আছে কিন্তু টুৰিষ্ট কান ৰেসপন্সিবিলিটি নলয় একটা ৰিপৰ্ট দীপ সাইকেল লগতে চাব As we know, Mokhan Laga Northeast biodiversity logote different culture, different colorful tradition ase. Aru jetia Mokhan Northeast thaka Assam Laga kotha monte ahe, jetia one and only kuntu ekta dangor mighty river Brahmaputra koi kine ekta ase, itu laga kotha monte ahe. Aji moi apni khanke eneka ekta jagar pra ground report koribole ase kote Assam te thaka Brahmaputra river kuntu একটা নিজৰ ডাইনামিক স্টাইল পৰা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড জানে আৰু এইটো ৰিভাৰ তে আজি আসাম তে থাকা মানুহ নহয় কিনে আউটসাইডাৰ আসাম পৰা আহি কিনে কি ইয়াতে পটেনশিয়ালিটি নহলে বি ৰিভাৰ টুৰিজিম নহলে বি আলাগ একটা এমপ্লয়মেন্ট আরবান এরিয়া হবি রুরাল এরিয়া হবি তাতে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট একটা ক্রিয়েট কৰিব পাৰে কৈ কিনে বেছিভাগ অপৰচুনিটি থাকা কথা শেয়ার কৰিব আজি আমি লগতে কানেক্ট হব কোন গেষ্ট যেতিয়া মই লগতে হৰ্ণবিল টিভিতে কানেক্ট হব তাখান পৰা এক্সপ্লেইন কৰা আগতে মই একটা কথা কৈ লব ইটো কমপ্লিট কথাটো আছে ৰিভাৰ টুৰিজিম ওপৰতে আৰু এতিয়া মই কোনটো জায়গাতে আছে আপুনি পিছতে ভিজুয়ালস দেখাটো ৰাতি লাগা ভিজুয়ালস আছে বলবি মই একটা ইয়াতে কৈ দিব ইটোটো একটা মই ক্ৰুজ তে আছে আৰু ইটো মাইটি ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্ট লগা নিমাতীতে আছে আৰু এইটো মাইটি ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে আজি বেংগলোৰ পৰা আহা একজন টুৰিষ্ট একটা ইউনিক কনসেপ্ট লৈ কিনে তাই আহি কিনে পৌঁছিছে আৰু তাইকে লগ কৰিবলৈ আজি হৰ্ণবিল টিভি তাইৰ লগতে প্ৰেজেন্ট হৈছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই তাই লগা কো পাৰ্টনাৰ আৰু এইটো পিছতে মই তাইৰ লগতে যাব মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম এইটো যিটো আপোনালোকৰ থিম বা আপোনালোকে কোনটো বেনাৰত কৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ এটা পৰিচয়টো দাঙি ধৰি এই বস্তুটোৰ লগত আৰু কেনেকুৱা বস্তু জড়িত হৈ আছে আৰু মেইন যিটো আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ আৰু ইয়াত এইখিনি কৰোতে কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সংক্ষেপত আপুনি ক'বলৈ হিন্দীত हाँ ক'লেও হ'ব हेलो मेरा नाम नौशाद हुसैन है और मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक कंपनी है एडवेंचरा बोल के और मेनली मैं एडवेंचर टूरिज्म का ऊपर मैं कंसंट्रेट हूँ, फोकस करता हूँ। और मेनली अभी मैं असम में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नागालैंड वगैरह ये सब जगह में भी बहुत सारा ये टूरिज्म वगैरह किया है, तो अभी अपना स्टेट में कर रहा हूँ। मेनली मेरा ये उद्देश्य है, अभी जो एडवेंचर टूरिज्म का जो हालत है नॉर्थ ईस्ट में, इसको प्रमोट करना है, इसको आदमी आना है इसको करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं एडवेंचर टूरिज्म ठीक तरह से करने के लिए। ये मेन वजह है क्योंकि हमको यहाँ पे स्किल आदमी नहीं है। तो ये स्किल के लिए अगर आदमी हम लोग को मिलेगा तो ये करने के लिए हम लोग के लिए और सुविधा होगा। तो इसके लिए जैसे आदमी नहीं मिलता है तो हम लोग को ये काम करने के लिए भी बहुत सुविधा, मतलब सुविधा नहीं होता है, ठीक तरह से हम काम नहीं कर पाते क्योंकि सबको समझाना पड़ता है, कोई समझ नहीं पाता है, गुस्सा हो जाता है उसको, ये काम बोलने से वो काम ये क्यों करेगा, हम ऐसा काम नहीं करना है। तो ये सब स्किल्स वगैरह जो होता है ना, ये सब सिखाने के लिए अगर आप सिखा सकते हैं तो ये सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी हम लोग ने ये जो शुरू किया है ब्रह्मपुत्र रिवर में जो एक्सपीडिशन शुरू किया है, तो इसका भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम लोग ये लड़का लोग को ये स्किल्स वगैरह हम सिखा सकते हैं तो डेफिनेटली ये रिवर टूरिज्म एक सक्सेसफुल। बेसिकली आप लोग कौन से चीज में फोकस करते हैं और जिस तरीके से आप लोग ऑलरेडी मेंशन करे आपके साथ जो मैम है अभी मैम भी कल इधर से निमाती से गुवाहाटी तक जाएंगे ऑलरेडी तिनसुकिया से आके इधर पहुंचे बेसिकली कौन सी चीज में आप लोग फोकस करते हैं जो एडवेंचर आपने बोला है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पोटेंशियलिटी है बेसिकली कौन सी चीज में आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ वाटर बेस्ड और एयर बेस्ड। Yeah. अभी पानी में हम लोग ये कायाकिंग कर रहा हूँ अभी। ये एक्सपीडिशन एक नया है, इसे टोटली काइंड ऑफ हम लोग समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सपीडिशन को और कैसे अच्छे ढंग से किया जाए। तो ये जो है मोस्ट ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स ओनली,
सो हम लोग एक साथ मिल के सोचा, एक दिन प्लान बनाया और प्लान बना के सब लोग आ गए, इकट्ठा हो गए और ये कुछ रेकी टाइप का ही है ये एक्सपीडिशन। और ये एक्सपीडिशन के पहले मैं गुवाहाटी में मेरा एक खुद ये नया से मैंने खोला है लुइट पैडलर्स बोल के, जहाँ पे मैं सनसेट पैडलिंग करता हूँ। शाम को वो होता है, शुरू होता है उजान बाजार घाट से, वो 1 घंटा का कायाकिंग होता है और वहाँ पे सब लोग आके उसको कर सकता है। तो एक वाटर बेस्ड टूरिज़्म हो गया और एक मैं जो कर रहा हूँ वो एयर बेस्ड टूरिज़्म जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया। जो मैं कर रहा हूँ गुंजुंग में, वहाँ पे एक गाँव है, डिमा हसाओ में, गुंजुंग बोल के एक गाँव है। तो वो गाँव को हम लोग डेवलप कर रहे हैं थ्रू एडवेंचर टूरिज़्म। वहाँ के लोगों को मैंने पैराग्लाइडिंग सिखाया, मतलब इंस्ट्रक्टर बाहर से लाके पैराग्लाइडिंग सिखाया, उस जगह को बनाया और अभी 2 साल से वहाँ पे कमर्शियल पैराग्लाइडिंग हो रहा है। Mm. Nagaland has lots of mountain. Maybe Exactly. you know. Yes, yes, yes. Yeah. We have also this kind of mountain where we can go and they Yes, yes, do yes. paragliding also. Is there any plan to go except Assam or any other part of the north? Yes, I have got invitation from Nagaland, from Dimapur. There was one person who was calling me for no to do a recce regarding paragliding. That was 1 or 2 times he called me. Then after I didn't got any call from him. But yes, Nagaland has very lot of potentials for adventure tourism. I think no, even the culture and all the kind of thing that Nagaland has so rich. And even I tell every people who come to who I meet, I tell one of the most hospitable people in the world are the Naga people. There can be no other people in this world other than the Naga peoples. And I tell my experience like no, even I take my tourists to some homestay, they even no feel bad to ask me money. So that is a kind of Naga people. That's are my friends who I meet in Nagaland. Thank you, thank you. এতিয়া মই লগতে কোন অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিছে আৰু তাইবি নাগালেণ্ড লগা হস্পিটেলিটি আৰু নাগালেণ্ড লগা টুৰিজিম পচিবিলিটি ওপৰতে কৰিছে আৰু মেম একজন মখান লগতে এতিয়া কানেক্ট হ'ব। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हॉर्नबिल टीवी मैम। हम लोग अभी जिस तरीके से आपके को पार्टनर ने बोला ऑलरेडी ये आप लोग का एक एक्सपेक्टेशन जो है जी। ब्रह्मपुत्र के लिए आप लोग ऑलरेडी तिनसुकिया से आके जोरहाट पहुंच गए। एक्चुअली दिस काइंड ऑफ यूनिक आइडिया जी। हाउ डिड केम टू योर माइंड? अम, बहुत से सिमिलर थिंकिंग पीपल उनके इंटेंशंस मैच करने होते हैं। तो ये हमने 1 साल प्लान बनाया। पिछले फ़रवरी में ब्रह्मपुत्र आके गई और फिर मैंने अपने एक दोस्त से कनेक्ट किया जो कुवैत में काम करते हैं, कुमरन नाम है उनका। तो उन्होंने फिर नौशाद जी को ढूँढ के निकाला। फिर और 4 दोस्त आए और 5 हम लोग मिलके फिर हमने पैडलिंग शुरू की। तो ये बहुत सारे लोगों का अच्छा इंटेंशन, कॉमन इंटरेस्ट था, तो उसके वजह से ये हो पाया। अच्छा मैम, what kind of basic problem you have already faced in the waterways and as a female आप जो ये कर रहे हैं कभी डर नहीं लगता ऐसी जगह में? बिल्कुल नहीं। आई थिंक अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ डरना नहीं चाहिए, वो नेचर है, क्योंकि हम खुद नेचर हैं, हम वी आर पार्ट ऑफ नेचर और मुझे लगता है हम नेचर से दूर चले गए हैं, इसीलिए हमें डर लगने लगा है। हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर्स थे, वो नेचर के साथ रहते हैं। इवन अभी भी जो गाँव में रहते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो नेचर के साथ एक साथ मिल के रहती है और उनको नेचर से कोई डर नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे-जैसे हम अर्बन बनते गए, हमको चीज़ों से डर लगने लगा। सो आई थिंक मैं चाहती हूँ कि लोग एक्सपीरियंस करें, बाहर देख के तमाशा नहीं देखें, बट अंदर आएँ और एक्सपीरियंस करें कि ब्रह्मपुत्र कितनी ब्यूटीफुल रिवर है एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आप लोगों को ब्रह्मपुत्र दी गई है और उसको आप अच्छे से एक्सपीरियंस करें। बेसिक अगर मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बोलने के लिए बोलूँगा तो अब इसका ये जो आप लोग का एक्टिविटीज़ है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि मोर एंड मोर पीपल आएँ और एडवेंचर टूरिज़्म को एक मौका दें, ट्राई करें कि बहुत कुछ हो सकता है इस रिवर में। तो वी आर इनवाइटिंग कि मोर पीपल शुड कम एंड ट्राई आउट समथिंग लाइक दिस। मैम ऑलरेडी आपने बहुत सारे नदियों में ऐसे एक्टिविटीज़ किए हुए हैं ब्रह्मपुत्र को छोड़ के भी। ये जो आपका जो जर्नी है टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र के लेके आप कल गुवाहाटी तक जाएँगे। ये जब आप लोग स्टार्ट किए थे, बहुत सारे लोगों को मे बी आप लोग मिल चुके हैं। अर्बन एरिया चाहे रूरल एरिया जो भी नियर बाय ऑन द बैंक ऑफ जी। द ब्रह्मपुत्र के पास है। तो
कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि मेट्रो सिटी जो का जो हाँ, लाइफ है हाँ, एंड रूरल और अर्बन एरिया का जो लाइफ है उसमें अंतर क्या है? क्योंकि ऑलरेडी जब हम लोग देखते हैं बहुत सारे मूवीज में, डॉक्यूमेंट्री में, सारे भारत के अंदर में जितने भी नदियां हैं बहुत सारे पोल्यूटेड है हुँ, बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नदी भी अभी है, हुँ, जैसे कि आप बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र, बहुत वो कंपेयर करने से ये बहुत साफ अभी भी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इधर का जो लोग है, जो बायोडायवर्सिटी है, इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक हमने जब पोबा रिज़र्व स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है हर कुछ किलोमीटर में द इकोसिस्टम चेंज्ड और मुझे लगता है दैट्स बिकॉज़ हाउ ब्रह्मपुत्र इज़ डायनामिक। तो जब ब्रह्मपुत्र इतना डायनामिक है, तो हर कुछ महीनों में उसमें नया लैंड आता है, नया इकोसिस्टम बनता है, माइक्रो हैबिटेट्स बनते हैं और कुछ महीनों में वो चला जाता है और वो बहुत नेचुरल है और लोकल्स ने उन उसके साथ रहना सीख लिया है और वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है इस जगह की। हुँ। मैम, अभी जिस जिस सेंचुरी में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे बाकी मेट्रो सिटी में नदी का पॉल्यूशन को लेके कोई ऐसे इम्पोर्टेंस दिया हुँ, नहीं जाते। लेकिन ब्रह्मपुत्र को अभी तक उस कंपेयर से हम लोग साफ बोल सकते हैं। हुँ, और इधर में आपने ऑलरेडी बोला जो रिवर टूरिज्म का पोटेंशियलिटी इधर में है, वो आपको किस लेवल तक इधर में आप देखते हैं? हुँ, प्लस ये जो आप कर रहे हैं, उसके बाद आपका फ्यूचर में और क्या-क्या प्लान है ब्रह्मपुत्र को लेके? और ये जो रिवर टूरिज्म के साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं हम जी, लोग, और ये आजकल का डेट में नॉर्थ ईस्ट को लोग समझते हैं खाली जंगल है, नॉन वेज खाता है, जी, और एज ए टूरिस्ट फ्रॉम आउटसाइड आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर के हैं। जी, आज का डेट में जो रेसिज्म प्रॉब्लम को लेके हुँ, हम लोग फेस करते हैं जी। बाहरी स्टेटों में, उसके ऊपर में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? और ये सारे जो कनेक्शन है टुवर्ड्स दिल्ली टू टुवर्ड्स मेट्रो सिटी टू आवर आवर प्लेस, ये आपको किस तरीके से देखेंगे आप? तो देखिए हर जगह की खूबियाँ होती हैं, हर जगह की यूनिक लाइफ़स्टाइल होती है, कल्चर होता है और जब हम किसी दूसरी जगह से नई जगह जाते हैं, हमको उस एरिया, उस कल्चर को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। हम ऐसे टूरिस्ट नहीं बन सकते कि हम जाएँ और हम वहाँ अपने घर का खाना माँगे। अगर आप घर का खाना माँग रहे हैं, तो आपको फिर ट्रैवल की क्या ज़रूरत है? सो दैट इज़ वन। ऑल्सो उस कल्चर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ खूबियाँ, यूनिकनेस हो सकती हैं और मुझे लगता है एक-दूसरे के प्रति टॉलरेंस आई थिंक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इस टॉलरेंस से क्या होता है व्हेन यू कम एंड स्पेंड मोर टाइम जब आप टूरिस्ट बन के 4 दिन के लिए आते हैं, आप बस ये चाहते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको जाएँ, वहाँ जाएँ और जल्दी से आपको पैक्ड खाना अपनी तरीके का खाना मिले और आप उसको खाएँ, फ़ोटो खींचे और चले जाएँ। तो एवरेज जो टूरिस्ट आते हैं, वो ऐसे ही आते हैं। पर अगर आप इसको स्लो ट्रैवल करें, आप इसको इमर्सिव करें और देखें कि एवरेज लोकल कल्चर में क्या खाया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे ओपिनियंस हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है। तो मुझे लगता है स्लो ट्रैवल अगर लोग चूज़ करें, थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम बिताएँ एटलीस्ट अ वीक टू 10 डेज़ किसी जगह पे बिताएँ, तो उनको और मौका मिलेगा कि बस इंस्टाग्राम की फ़ोटो ना लें और ट्रूली एक्सपीरियंस करें कि लोग कितने प्रकार के हैं और इन एक्सपीरियंस से आप रिच बनें। क्योंकि फिर आपको किताबें कम पढ़ने की ज़रूरत होगी, आपके पास ऑलरेडी इतनी स्टोरियाँ होंगी। Mm. Ma'am, despite having of all these things like this mighty Brahmaputra, mountains and बड़े-बड़े रिजर्व फॉरेस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट के बीच जी, में है, तो हम लोग का जो गवर्नमेंट है इन कंपेयर टू अदर अदर स्टेट गवर्नमेंट, रिवर टूरिज्म और ये चाहे नदी को लेके अभी तक उस लेवल में नहीं पहुंचा है जी। जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था। तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? आई थिंक मैं चाहती हूँ कि ये शुरुआत हो और इससे और ज़्यादा प्रमोशन मिले और लोग इंटरेस्ट हों और मुझे लगता है सरकार के पास बहुत सी मामले हैं सुलझाने के लिए
एंड अगर हम उनको सेंसिटाइज करें कि इस तरह का कवरेज करके अगर सेंसिटाइज करें कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, देखिए बाहर देश के या बाहर स्टेट के लोग आके ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली द सरकार विल डेफिनेटली सपोर्ट अस। मुझे तो आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। Ma'am, have you ever been to Nagaland? जी, आई हैव फॉर वर्क एक्चुअली। Okay. जी। Is there any plan to extend your tour to Nagaland like this adventure segment? गॉड विलिंग आई एब्सोल्युटली विल। मैं चाहती हूँ कि मैं आऊँ, और जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स नॉट जस्ट रिकमेंडेशन, मैं खुद ये करना चाहती हूँ, स्लो ट्रैवल करूँ, कोई ऐसी जगह, नई जगह जाऊँ और उसके लोकल कल्चर, लोकल पीपल के साथ इमर्स हो जाऊँ, स्पेंड एटलीस्ट 1 महीना स्पेंड करूँ, ताकि मुझे पता चले उनका रहने का, उनका बात करने का ढंग, कुछ नए शब्द सीखूँ, कुछ नई स्टोरियाँ सीखूँ, कुछ नए गाने सीख के आऊँ। सो दैट इज़ अ एक्सपीरियंस दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम आपको ऑलरेडी पूछ चुके हैं, फिर भी एक बार स्पेसिफाई पूछना चाहते हैं कि ये जो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट को बाहर में जो रेसिस्ट प्रॉब्लम का जी, हम लोग शिकार होते हैं, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जी, और एज ए टूरिस्ट आप एक फीमेल होके इधर में कितना सेफ महसूस कर जी। रहे हैं, और अपकमिंग डेज में जो भी टूरिस्ट आएंगे हुँ। उसके लिए आपका कौन सा क्या मैसेज रहेगा, और ये जो सारे विषय है इसको सरकार किस तरीके से देखना चाहिए? अ, जब मैं इस ट्रिप के बारे में प्लान कर रही थी, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे सेफ्टी का कोई कंसर्न होगा। मैंने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ट्रैवल किया है और मुझे लगता है कि ये बहुत सेफ ज़ोन है, और यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। वो नॉट जस्ट वो इनवाइट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप यहाँ सेफ रहें। मुझे इसलिए अपने बारे में, सेफ्टी के बारे में कभी ये कंसर्न नहीं हुआ। और मैं आगे ये भी चाहती हूँ कि जो अगर लोग यहाँ आना चाहें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, और दे कैन बेंड ओवर बैकवर्ड टू हेल्प यू, इवन इफ यू डोंट आस्क फॉर हेल्प। थैंक यू मैम। और लास्ट माय लास्ट क्वेश्चन, अगर नागालैंड में जाने का जी, आपका फिर मौका मिले, एंड नागा लोग के जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं बहुत अच्छे एक स्टेट है, जी, और कभी भी आप नागा लोग के हॉस्पिटैलिटी जी, या नागा लोग का ट्रेडिशन कल्चर, जी, ये आपको मौका मिलने से तो आप जाएंगे। जी। और अभी अब अभी तक आपने जो सुना है नागा लोग के ऊपर में आपका क्या विचार है? जैसे मैंने कहा, मुझे नॉर्थ ईस्ट के सारे बेल्ट से बहुत लगाव है। और मुझे लगता है नागामीज़ पीपल, उनमें बहुत से ऐसे सब ट्राइब्स हैं जिनके बारे में लोग कोई नहीं जानता, इंक्लूडिंग मी। मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ पेपर में पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़ा है, बट इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, और मुझे चाह है कि मैं और आगे जाऊँ और देखूँ कि ये लोग कैसे लिव करते हैं, और ये सारे इंडियंस हैं, और मैं चाहती हूँ कि इंडिया के जो अलग-अलग रंग हैं, अलग-अलग व्यवहार हैं, वो जाके देखूँ और त्योहार जाके देखूँ। तो मुझे बहुत चाह है कि मैं जाके देखूँ। थैंक यू मैम। वी होप अपकमिंग डेज में आप भी नागालैंड आए, जी, हॉर्नबिल टीवी आपके साथ रहेंगे। थैंक ইউ এপ্রিচিয়েট। মেম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংকস। আৰু এইটো থাকিছে আজি কোন মেম এতিয়া মখান লগতে আছে, মেম পৰা পেডলিং কৰি কিনে কোনটো একটা এডভেঞ্চাৰ কৰি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰতে, এইটো একটা ইউনিক এডভেঞ্চাৰ আছে, আৰু তাই কোৱা হিচাপতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰতে বেছি পটেনচিয়েলিটি আছে, ৰিভাৰ টুৰিজিম বি হবি নহলে এডভেঞ্চাৰ লেভেল টিভি, আৰু অলৰেডি একজন ইয়াতে থকা মেম্বাৰ পৰা কোৱা নিচিনা বেছিভাগ পটেনচিয়েলিটি থকা আমি খানলা নৰ্থ ইষ্ট আছে। আৰু when I asked her about the safety norms, তেতিয়া আসামতে হবি, নর্থ ইস্টে হবি, নাগাল্যান্ডে হবি, কোতে হবি নর্থ ইস্ট সেফ আছে কৈছে। এন্ড আমি খানকে ইটোৱে লাগে বাহাৰ লাগা স্টেটে মখানকে কিমান আলাগ আলাগ নাম পৰা ভি মাতিব, আলাগ আলাগ কথা ভি কব, আৰু আলাগ আলাগ ৱে পৰা আমি খান ইণ্ডিয়ান নোহোৱা নিচিনা ট্ৰিট কৰা লাগা কোনটো কালচাৰ আছে ইটো কেতিয়া খতম হ'ব, তেতিয়াই মখান লাগা নৰ্থ ইষ্ট লাগা মানুহকে আলাগ আলাগ ষ্টেটে আলাগ আলাগ কাণ্ট্ৰিতে নিজৰ মানুহ আছে কৈ কিনে ভাবিব পাৰিব। উই আৰ অলছ' ইণ্ডিয়ান, এইটো মখান লাগা নৰ্থ ইষ্ট লাগা পাব্লিক লাগা একটা কথা আছে, একটা ক্লিয়াৰ কথা আছে, আমি খান বি ইণ্ডিয়ান আছে, আৰু মখান বি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন নহলে ইণ্ডিয়া লাগা
কোনটো নিয়ম কানুন আছে তাতে মখান থাকি আছে আজি মখান এইটো হৰ্ণবিল টিভি ইয়াতে প্ৰেজেন্ট হৈ কিনে মেম লগতে একজন ফিমেল এক্টিভিষ্ট হৈ কেনে ফিমেল তাই একটা নদী নিচিনা ৱাটাৰ ৱেজতে তাই কোনটো পেডলিং কৰি কেনে যোৰহাট নিমাতীৰ পৰা গুৱাহাটী তক যাই কিনে কোনটো এডভেঞ্চাৰ কৰি আছে তাইকে চাই কিনে এনকাৰেজ হৈ কিনে দুসৰা টুৰিষ্ট খান বি নৰ্থ ইষ্টে আহি কিনে নাগালেণ্ড হবি আসাম হবি ভাল পৰা এইটো এক্সপ্লোৰ কৰি কেনে দুনিয়াতে নৰ্থ ইষ্টকে আগে লৈ যাবলৈ সদায় তাখান লগা একটা মন লগা ভাৱনা আছে আৰু নৰ্থ ইষ্টটো তাইৰ পৰা কোৱা হিচাপতে ছেফ আছে আহিব পাৰে বাহাৰতে কিমান ৰিউমাৰ্ছ যাই থাকিলে যেতিয়া তাক নৰ্থ ইষ্টে আহি কিনে মানুহ নপুঞ্চিব তেতিয়া তাক নৰ্থ ইষ্ট লগা বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিচ কালচাৰ হেৰিটেজ কালচাৰ এইটো খানটো ফিল কৰিব নাপাৰিব এণ্ড দিছ ৱে একটা ৱাটাৰ ৱেজতে থকা এডভেঞ্চাৰ দেখাব নিমিত্তে মখান এতিয়া কোনটো ক্ৰুজতে খাৰা আছে আৰু মেম লগা টিম লগতে মখান বি হোপ কৰি আছে তাখান লগা জাৰ্নি ছেফ হ'ব তাখান লগা কোনটো অবজেক্টিভ আছে এইটোতে তাখান ছাকচেছ হ'ব এতিয়া এনেকা কৰি কেনে হৰ্ণবিল টিভি প্ৰেজেন্ট হৈ কিনে আপুনি খানকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰতে থকা নিমাতী কোনটো অন দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ লা কিনাৰতে থকা নিমাতী লা ক্ৰুজ ওপৰৰ পৰা এইটো গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট কৰি আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হৰ্ণবিল টিভি মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম নিমাতী যোৰহাট